Day 1 of percentage video. The question number 1 is this. Two students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 556% of the sum of their marks. What are the marks obtained by them? Okay. So the point is there are two students, the student number A and the student number B. All right. Now, out of these two students, one of them secured 9 marks more than the other. Okay, and his marks means there's a student A and there is a student B. One student secured 9 marks more than the other. Okay, now his marks means this x plus 9 was 56% of the sum of their marks. So we can say that the marks of B is 56% of 56% of A and B, right? Okay, now say we can say one thing, if B marks is, from here we can say that if B marks is 56, so A marks automatically will become 44, and we can say that from here, from the comparison we can conclude that this difference is what, this is 6 minus 4 2, 5 minus 4 1. So according to the question, this should be 9, so we can say that this 9 marks should be equal to the 12 unit. Okay, now what we have to find out? We have to find out marks obtained by them, means we have to find out the value of the 56 and the value of the 54. So 1 unit means what? 1 unit means 9 by 21, 9 by 12. So we can say that the value of 56 is what? 9 by 12 multiply 56, and the value of 44 means what? 9 by 12 multiply 44. So we can say that these are the marks of the B, these are the marks of the A. Okay, now 9 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 4 16. So B marks is 42, and 3 3 9, 3 4 12, that is 1 1. It means A marks is 33. So the answer for this question is 42 and 33. All right, I hope this question is clear to all of you. Now let's move toward the question number 2. Question number 2 is what? Two numbers A and B are such that sum of 5% of A means sum of 5% of A and 4% of B. 4% of B, the sum of 5% of A, 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. All right. So we have to find out the ratio of A by B. Okay. Now we can say that the 15% of A plus 12% of B. This is 12% of A and 16% of B. So if you will remove this percent, how? Because denominator will be 100 and this will be cancelled out. 15A, 12A, that is 3A. That should be equal to 4B. So A by B, we can conclude that this is 4 by 3. So I hope this question is also clear. So the answer for this question is 4:3. All right. So let's move toward the next question of the percentage. Question number next. Two employees X and Y are paid a total of 550 per week by their employer. So XY total amount they are getting is rupees 550 per week. 550 per week. All right. Now, if X is paid 120% of the sum paid to Y, let's say Y, we are paid to Y amount rupees 100. Let's say 100 unit, and the amount, it means X will be what? 120%. So 120% of 100 is 120. So we can conclude this total is 220. So this 220 unit, this is our assumption, should be equal to rupees 550. So the question is, how much is Y paid per week? Okay, so you have to find out the value of 100. Okay, now the value of 100 is what? 550 divided by 220 multiply 100. If you will solve it, you will get what? 11 to 22, 11 5 55. This will become 50. So this will become 250. So it means what? The amount
paid per week to Y is rupees 250. So this is our final answer. I hope this question is also clear. So let's move toward the next question. अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, राहुल वेंट टू अ शॉप एंड बोट थिंग्स वर्थ रुपीज 25, out of which 30 paise went on sales tax on taxable purchases. If the tax rate was 6%, then what was the cost of the tax-free items? Means what? You can say that राहुल अगर शॉप पर जाकर कुछ आइटम खरीदता है 25 रुपए का, तो इस 25 के अंदर क्या है, एक ऐसा अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया है, नो टैक्स पेड, नो टैक्स पेड, और कुछ ऐसा अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स पे किया गया है, राइट, टैक्स पेड किया गया है यहाँ पे। तो क्या हम ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर टैक्स रेट 6% है और आप यहाँ पे 30 पैसे टैक्स दे रहे हो, तो आप 6% को 30 पैसा बोल सकते हो यहाँ पे, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 100% है, 100% जो रहा होगा आपका, वो 30/6 गुणा में 100, आप ये कह सकते हो आपका ये 500 पैसे रहा होगा, जो कि 5 रुपए निकल के आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे 5 रुपए के ऊपर 30 पैसे टैक्स दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉस्ट बताना है आपको टैक्स फ्री आइटम का, तो भाई 25 रुपए आपने टोटल दिए हैं, अगर इसमें से आप 5 रुपए निकाल देते हो, 5 रुपए प्लस 30 पैसे का मतलब क्या हुआ, 0.3 रुपीज, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है जो टैक्स फ्री आइटम है, वो होगी वो पैसे जिसके ऊपर टैक्स दिया आपने और वो पैसे जो आपने टैक्स उसके ऊपर दिया, तो टोटल आपने इतना एक्स्ट्रा ज्यादा दिया है। तो आप बोल सकते हो 25 में से अगर 5.3 घटा दिया जाए तो आपका जो उत्तर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और ये 19.7। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो उत्तर हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा, जो कॉस्ट है टैक्स फ्री आइटम की, वो 19.7 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, पॉपुलेशन है टाउन की वो इंक्रीज कर जाती है 1,75,000 से 2,62,500 इन अ डिकेड का मतलब 10 साल के अंदर। तो आप बोल सकते हो 2,62,500 हो गई है वो, 500 से 1,75,000 से 2,62,500 हुई है 10 साल के अंदर। तो आप बड़ी आसानी से बात निकाल सकते हो यहाँ पे, 12 में से 5 गया 7, 15 में से 7 गया 8 और ये 0, 87,500 इतनी बढ़ गई है पॉपुलेशन 10 साल के अंदर। तो आप बोल सकते हो एक साल के अंदर कितनी बढ़ी होगी, एक साल के अंदर बढ़ी होगी भैया ये 8750, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया एवरेज परसेंट इंक्रीज निकालना है पॉपुलेशन का पर ईयर। तो 8750 बढ़ गई आपकी, शुरू में थी 17530, गुणा में 100 कर दीजिए। तो 1 2 3 अगर आप काट दोगे यहाँ पे तो आपको जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 5 3 15, 5 5 25, 5 एकम 5, 3 कैरी 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25 और 7 5 35। तो आप बोल सकते हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि आपका आंसर जो है 5% हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको निकालना था एवरेज परसेंट इंक्रीज कितना हुआ पर ईयर, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है डे 1 का, जो हमने परसेंटेज के क्वेश्चन करने शुरू किए हैं हमसे। देखिए ऐसा है 3 कैंडिडेट है हमारे इलेक्शन के अंदर जिनको वोट जो मिले हैं वो 1136 मिले हैं, एक को मिले हैं 7636, तीसरे पर्सन को मिले हैं 11628, ठीक है। अब कह रहा है कि जो परसेंटेज है टोटल वोट्स का डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, मींस मतलब ये हुआ कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको टोटल वोट्स का कितना परसेंटेज मिला है। तो अगर आप ऐड कर देते हो 6 6 12 और 8 20, 2 कैरी 5 और 3 8 और 2 10, एक कैरी कर देते हो आप 6 6 12 और 2 14, एक कैरी 8 9 10, एक कैरी 2। तो आप बोल सकते हो हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। आप बोल सकते हो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 11,628 वोट, कितने में से 20,400 में से। अगर परसेंटेज निकालने की बात आती है तो 0 0 आप घटा सकते हो यहाँ से, ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो 4 5 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 कैरी 4 में 36, 4 में 4 7 28, फिर से ये 17 दूनी 34, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21,
और ये 3 में 27, 2 कैरी 3 6 18, 3 में 27, तो आप 969 को अगर 17 से भाग दे देते हो, ठीक है, 969 को 17 से भाग दे देते हो आप, तो आपका आएगा 17 पंजे 85 एंड 17 छिक 102। तो बढ़िया है, 17 पंजे 85 कर देते हैं हम। 17 पंजे 85, 11 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो 119 बटे में 17 की अगर बात आ जाए यहाँ पे, तो मैं अच्छे से पता है 17 सत्ते जो होता है वो होता है 17 सत्ते होता है 119, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो परसेंटेज आया टोटल वोट का, जो विनिंग कैंडिडेट को मिले वो 57% मिल गए टोटल वोट, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा आंसर है 57%। तो आज हम परसेंटेज वीडियो में पहले दिन 7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम लेवल 2 डिस्कस करेंगे अपने डे 2 में, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप सबको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके ओके।